Hello everyone. Today we are going to discuss chapter 3 of class 12th, current electricity. Topics to be discussed are electric current, drift velocity, mobility and their relations, Ohm's law, electrical resistance, VI characteristics, linear and nonlinear, electrical resistivity and conductivity. Let's start. First of all, we are going to discuss electric current. You have studied about this in lower classes. Electric current is the time rate of law of charge. It is denoted by symbol I. I is equal to Q upon T if rate of law of charge is steady, and I is equal to dQ upon dt if rate of law of charge varies with time. यदि करंट कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट फ्लो कर रहा है, then you will use the formula I is equal to Q upon T, and if flow of charge varies with time, then you can calculate I is equal to dQ upon dt. You will have some numericals related to these formulae, and sometimes the equation of charge is given in terms of time, and then you have to find the current. Just differentiate the equation and you will get the time. SI unit of electric current is ampere. It is denoted by capital A. 1 ampere is equal to 1 coulomb upon 1 second. So we can define 1 ampere. Electric current is said to be 1 ampere when 1 coulomb charge flows through a conductor in 1 second. This is electric current. Electric current is the time rate of law of charge. Different types of current. See this graph. Time is taken along x-axis and current is taken along y-axis. This blue line, what it shows, it is parallel to time axis. It shows current is constant, time is increasing. Means time increases but current does not change. It represents the constant current, steady current. So this is part A, steady current which does not vary with time. This second graph B. इसमें आप देखेंगे what is happening actually. Time increases and current also increases, means current is changing. In graph C as well, current changes with time. But what is difference between B and C? In graph B, current increases with uniform rate, but in graph C, current varies with time but non-uniformly. So B and C both graphs, current is varying in magnitude with respect to time. In graph C, current again changes but in a systematic way. First positive, then negative, then positive, then negative in a particular manner. After a regular interval of time, current is changing its direction. So it is the alternating current. Alternating current whose magnitude varies continuously and direction changes periodically. These are the four graphs. Graph 1 represents steady current. Graph 2 and 3, B or C you can say, varying current whose magnitude varies with time, and in graph C this is the alternating current whose magnitude changes continuously and direction changes periodically. Next, conventional current. See, these are the two plates having charge positive on left plate and negative on right plate. See carefully, this positive charge is moving from left to right and the direction of current is same as that of the direction of motion of positive charge. It is the current whose direction is along the direction of motion of positive charge under the action of electric field. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है and current also flows due to the motion of positive charge in the same direction of positive charge.
जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. In second diagram, see, plates are reversed. Left side negative plate and right side positive plate. Now this negative charge is moving from left to right, and see carefully, the direction of current is reversed. It means conventional current due to the motion of electrons is in the direction opposite to that of motion of electrons. From these 2 points you can conclude current flows in the direction of positive charge and opposite to that of negative charge. इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है ना. वैसे बहुत अमेजिंग. अभी हम डायरेक्शन की बात कर रहे थे एंड देन अगेन वी आर सेइंग इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. दो वी हैव डिस्कस्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट, yet it is a scalar quantity. Why? ऐसा क्यों है? Let's discuss. It is because it follows the laws of scalars addition, not vectors addition. जब आप करंट को ऐड करते हैं तो स्केलर एडिशन के लॉज को यूज़ करते हैं, ना कि वेक्टर एडिशन के लॉज को. दैट्स वाई इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. You can see with the help of this diagram, these two currents I1 and I4, they are moving towards point O, and these three currents I2, I3 and I5 moving away from point O. So here I1 plus I4 is equal to I2 plus I3 plus I5. यहाँ पे हम डायरेक्ट जस्ट लाइक ए अल्जेब्रिक सम हम ऐड कर रहे हैं करंट को. यहाँ पे एंगल, डायरेक्शन, दैट डजेंट मैटर. दैट्स वाई करंट इज कंसिडर्ड एज ए स्केलर क्वांटिटी. द एंगल बिटवीन वायर्स कैरिंग करंट्स डू नॉट अफेक्ट द टोटल करंट इन द सर्किट. तो मीन्स क्लियर कट है कि करंट जो है वो अल्जेब्रिकली ऐड करते हैं उसको, वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो नहीं करता. एंगल डजेंट मैटर बिटवीन द वायर्स, so electric current is considered as a scalar quantity. Next is flow of electric charges in a metallic conductor. Atoms in a metallic conductor are so closely packed that valence electrons are not firmly attached to their particular atoms. They are free to move within the material. जो कंडक्टर के एटम्स होते हैं उनके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, दे आर नॉट अटैच्ड टू पर्टिकुलर एटम्स. दे आर फ्री टू मूव विद इन द मटेरियल. व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, दे मूव रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड देयर एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज ज़ीरो. जब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, just simply between that metal surface, they are randomly moving in different directions and their net average thermal velocity is zero when there is no electric field applied. And when electric field is applied, free electrons accelerate towards positive end and current is set up in the conductor. जब हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेट करते हैं एंड इट विल हैव द करंट. मीन्स करंट को मेंटेन करने के लिए हमें वहाँ पे क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी होती है और पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करना होता है. नेक्स्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट. व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द average velocity with which free electrons get drifted towards positive terminal under the effect of applied electric field. ये वो एवरेज वेलोसिटी है जिसके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड. दैट एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. It is that average velocity with which free electrons get drifted towards positive terminal under the effect of applied electric field.
ये आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ इज L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A. This V is the potential difference applied across two ends of the conductor. So electric field is applied from left to right and electrons are moving from right to left. And we know that direction of conventional current is from positive terminal to negative terminal, you can say, or you can say opposite to the flow of electrons. So here drift velocity, as we know that it is the average velocity. So take the average of n atoms or n electrons, Vd is equal to V1 plus V2 plus so on Vn upon n. This V1 V2 Vn क्या है? ये average, this is the velocity of electron 1, velocity of electron 2, so on velocity of nth electron. तो इसका एवरेज हम निकालेंगे, दैट एवरेज इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें पता है वी हैव स्टडीड इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at, दैट फार्मूला विल बी यूज्ड. v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a τ1, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a τ2 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे हम v1 v2 vn के फॉर्मूला पुट करेंगे एंड देन अब हम क्या करेंगे, u1 u2 un को कंबाइन करके एक सेपरेट टर्म बनाएंगे इसको. लेट्स सी, u वाला पार्ट जो था वो इनिशियल वेलोसिटी वाला वो अलग कर दिया और टॉ वाला पार्ट एक्सेलरेशन कॉमन आ गया यहाँ पे और टॉ वाला पार्ट ये सेपरेट कर दिया. एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड जो इनिशियल थर्मल वेलोसिटी है बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इज 0. सो दिस इक्वेशन इज रिड्यूस्ड. In absence of electric field, average thermal velocity of electrons is 0. Then Vd is equal to a tau. तो ये τ1 plus τ2 plus so on τn upon n, that is the average relaxation time tau. तो आपके पास आ गया a Vd is equal to a tau. अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट कर दिया. तो जैसे आपको पता है F इज इक्वल टू ma, वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं. तो F जो है वो यहाँ पे हो जाएगा माइनस स्मॉल e एंड कैपिटल E. स्मॉल e है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैपिटल E है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन a का फॉर्मूला पुट किया है. देन वी विल गेट Vd इज इक्वल टू माइनस e tau अपॉन m. नेगेटिव साइन शोज दैट direction of drift velocity of electrons is opposite to direction of applied electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपोजिट है. दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलैक्सेशन टाइम. नेक्स्ट, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? It is the time interval between two successive collisions. It is given by tau. जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रीली इन द सरफेस ऑफ द मटेरियल, तो वो क्या करते हैं, ड्यूरिंग देयर मोशन दे कोलाइड विद देमसेल्व्स और विद द पॉजिटिव आयंस विद द न्यूक्लियस. तो बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में जितनी देर तक वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, दैट टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. तो यहाँ पे ये आ गया tau इज इक्वल टू τ1 प्लस τ2 प्लस सो ऑन τn अपॉन n इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला यू कैन यूज मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. टाइम है सीधा, मतलब टाइम के लिए आप नॉर्मली जो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेंथ अपॉन स्पीड, दैट इज द फॉर्मूला. mean free path, it is the length, and drift speed of electron. Next, mobility. Mobility क्या होता है? Mobility of charge carrier responsible for current is the drift velocity of charge
per unit applied electric field. It is denoted by mu. तो ये क्या है, मोबिलिटी को हम म्यू से शो करते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने देखा था प्रीवियस आर्टिकल में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी, आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट ड्रिफ्टिंग मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जितनी आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग अप्लाई करेंगे उतना उनका जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। तो दैट ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो यहाँ पे आपने ड्रिफ्ट स्पीड का आपने फॉर्मूला पुट किया, ई टॉ अपॉन एम। तो यहाँ पे ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट ई टॉ अपॉन एम। एक और फॉर्मूला है इसका 1 अपॉन एन ई रो, ये आप आगे फर्दर स्टडी करेंगे। तो ये 3 फार्मूले हैं म्यू के, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई इज इक्वल टू ई टॉ अपॉन एम इज इक्वल टू 1 अपॉन एन ई रो। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। नेक्स्ट, relation of drift velocity and current. This is very important. If conductor of length L, area of cross section A having a number of electrons per unit volume n, n है यहाँ पे number of electrons per unit volume, volume कितना है, A into L is the volume, then current flowing through the conductor. तो ये same diagram we are using, length L, area of cross section A, and V is the potential difference applied, and electric field is moving from left to right and electrons are moving from right to left. So current will be opposite to the flow of electrons. Then हमें पता है करंट का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। यहाँ पे Q है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज आ जाएगा आपके पास ALNE अपॉन टाइम। टाइम का फॉर्मूला भी अभी आपने पढ़ा था एक एवरेज रिलैक्सेशन टाइम में, लेंथ अपॉन स्पीड। तो टाइम की जगह पे आ जाएगा L अपॉन वी डी, तो यहाँ पे L से L कैंसल, तो फाइनली यू विल गेट द आंसर I इज इक्वल टू ANEVD। अब आप सोच रहे होंगे कि Q इज इक्वल टू ALNE कहाँ से आया। E इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स है n, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E, तो टोटल चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम Ne एंड टोटल चार्ज इन कंप्लीट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, ALNE इज द टोटल चार्ज। ओके, तो फाइनली यू विल गेट द फॉर्मूला electric current I is equal to ANEVD. A is the area of cross section, N is the number of electrons per unit volume, E is the charge of 1 electron and VD is the drift speed, the drift velocity. It shows that current is directly proportional to drift velocity. I is directly proportional to drift velocity. नेक्स्ट, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम कैपिटल J से शो करते हैं। करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट विद इन ए कंडक्टर इज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर अराउंड दैट पॉइंट, प्रोवाइडेड द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट एट दैट पॉइंट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। If you want to represent the current in vector form, we use another physical quantity that is called current density. It is a vector quantity. It is denoted by J. J is equal to I upon A, current per unit area. तो यहाँ पे करंट का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, ANEVD, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू NEVD. What is current density? Current flowing per unit area of conductor.
दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई का फॉर्मूला हो जाएगा आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आई अपॉन ए है, आई का एम्पियर हो जाएगा और नीचे एरिया है, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। Electric current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across two ends of the conductor when physical conditions such as temperature, mechanical strain, etc. remain same. This is a conductor and V is the potential difference applied. I is the current flowing through the conductor. तो यहाँ पे इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम योर कॉमन डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस, जितना आप हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे उतना ही करंट बढ़ जाएगा। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। सो आई प्रोपोर्शनल टू वी, और यू कैन से वी प्रोपोर्शनल टू आई। व्हेन दिस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल इज कन्वर्टेड इनटू इक्वल टू, वी यूज ए कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज आर, then V is equal to Ri. This is Ohm's law. V is the potential difference applied and I is the current flowing through the conductor and R is the constant, and this R is called resistance of the conductor. Here R is constant of proportionality and called resistance of the conductor. This is called Ohm's law. तो ये ग्राफ है इसका। एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल लिया है V, वाई एक्सिस पे करंट I, एंड दिस ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। एज वोल्टेज अप्लाइड इंक्रीजेस, करंट आल्सो इंक्रीजेस। इफ ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन देन दिस लॉ इज ओबेड, ओम्स लॉ इज ओबेड। कुछ कंडीशंस ऐसी आती है जहाँ पे ये वी आई ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता। तो जहाँ पे ग्राफ वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ओम्स लॉ इज ओबेड, एंड जहाँ पे वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड। इस ग्राफ की हेल्प से हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ठीक है, जब करंट किसी कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है तो उस कंडक्टर की इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ के कारण उसमें क्या होता है, उस करंट के फ्लो को अपोज करता है। दैट प्रॉपर्टी विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इन सिंपली यू कैन से अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आर का फॉर्मूला वही, V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू V अपॉन आई। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। सिंबल है इसका ब्रैकेट में। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। फॉर्मूला भी आपने देखा, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो एट द प्लेस ऑफ R 1 ओम, V 1 वोल्ट एंड I is 1 एम्पियर। Then you can define 1 ohm. Resistance of a conductor is said to be 1 ohm when 1 volt potential difference is applied across its ends and current flowing is 1 ampere. आपने किसी सर्किट में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है और उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, देन रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट इज 1 एम्पियर, 1 ओम। Resistance of a conductor is said to be 1 ohm when 1 volt potential difference is applied across its ends and current flowing is 1 ampere. तो यहाँ से आप इसके डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। R के ऊपर क्या है, V, डिनोमिनेटर में I। तो V का फॉर्मूला आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो पुट ऑल दीज, W वर्क है, ml/t-2 होता है। चार्ज को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, चार्ज आ जाएगा आपके पास, करंट इनटू टाइम, और नीचे भी करंट है, तो फाइनली यू विल गेट ml/t-3a-2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ R। नेक्स्ट इज
रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? जैसे हमें पता है करंट का फॉर्मूला एक हमने पढ़ा था अभी, I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। तो वी डी इज इक्वल टू आई अपॉन ए एन ई। क्लियर? तो वी डी का एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने, ई टॉ अपॉन एम। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दी V अपॉन एल। ये आपने उसमें पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट में, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पे E की जगह पे पुट किया V अपॉन एल। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आपके दो फॉर्मूले बन गए, दोनों को इक्वल पुट कर दो। I अपॉन ए एन ई इज इक्वल टू ई वी टॉ अपॉन एम एल। रीअरेंज, तो ये यहाँ पे I को इंटरचेंज करके उस साइड ले जाएंगे और एम एल इधर आ जाएगा। तो एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर टॉ ए इज इक्वल टू वी अपॉन आई। और हमें पता है V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। सो आर का फॉर्मूला एक होता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अब इन दोनों फॉर्मूलों को आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास आ गया आर इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टॉ into L upon A. So then compare, you will find resistance is directly proportional to length of the conductor. Resistance is inversely proportional to area of cross section of the conductor. Resistance also depends on nature of material and temperature. तो यहाँ पे जो स्मॉल n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो नेचर ऑफ मटेरियल आ जाएगा उसमें। और टॉर रिलैक्सेशन टाइम दैट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो ये आ गया रेजिस्टेंस इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक लेंथ, एक एरिया, एक नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो पिछले फॉर्मूले में जो आपने रो पढ़ा था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, दैट रो इज द रेजिस्टिविटी और उसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। यह है फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। सो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। और वही पीछे वाला फॉर्मूला कंपेयर करेंगे तो रो का वहां पे फॉर्मूला बन जाएगा m अपॉन एन ई स्क्वेयर टॉ। दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात ये है, जैसे रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले में देखेंगे तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सिमिलरली उधर हम देखते हैं रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। जैसे हम रेजिस्टेंस के केस में कहते हैं व्हेन लेंथ इज डबल्ड रेजिस्टेंस इज आल्सो डबल्ड। लेंथ वायर है कोई, उसकी लेंथ L है, आपने यदि डबल लेंथ की वायर ले ली तो उसकी रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। बट इट इज़ नॉट सो इन केस ऑफ रेजिस्टिविटी। यदि आप लेंथ को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी, तो ओवरऑल रेजिस्टिविटी रिमेन सेम। सो रेजिस्टिविटी जो है वो एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर but not on the geometrical dimensions, length and area of the conductor. If L is equal to 1 meter and area is equal to 1 meter square, then rho is equal to R. Resistivity of a material is numerically equal to resistance of that material of length 1 meter and area of cross section 1 meter square. ठीक है, आपके पास कोई मटेरियल है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी जितनी रेजिस्टेंस होगी दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मतलब मटेरियल की नेचर क्या है और मटेरियल मतलब उसका टेम्परेचर कितना है। बट रेजिस्टेंस जो है प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, पूरे ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, उसकी लेंथ पे, एरिया पे, उसके मटेरियल पे, उसके टेम्परेचर
इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी, लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। तो ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं। रो का एक फॉर्मूला है E/J, और जे का फॉर्मूला आपने पढ़ा था NEVD। तो रो का फॉर्मूला यहाँ पे बन गया E/NEVD। जे का फॉर्मूला ये था आपके पास I/A इज इक्वल टू NEVD। when temperature increases, tau and VD decreases and resistivity increases। ठीक है, जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से उनकी स्पीड बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, उनका कोलिजन जल्दी होता है, मतलब रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कम हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। वीडी का फॉर्मूला क्या था, E τ/m। ठीक है, यदि टॉ डिक्रीज होगा तो वीडी ड्रिफ्ट स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगी और रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। वीडी का एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा था E/NE रो, और वीडी का एक और फॉर्मूला यहाँ पे E की वैल्यू पुट कर देंगे तो वीडी इज इक्वल टू V/NE रो L, बिकॉज E इज इक्वल टू V/L। When L increases, ड्रिफ्ट स्पीड डिक्रीजेस। तो यहाँ पे क्लियर फॉर्मूले से ड्रिफ्ट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। When length increases, drift speed decreases। Next is conductance। conductance क्या होता है, it is the reciprocal of resistance। conductance को यहाँ पे हम कैपिटल G से शो कर रहे हैं, G is equal to 1/R। it is the reciprocal of resistance। SI unit of conductance is mho और ओम इनवर्स और साइमन। कैपिटल S से डिनोट कर रहे हैं इसको यहाँ पे। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको सिग्मा से शो कर रहे हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। तो रो का फॉर्मूला पढ़ा था हमने M/NE² टॉ, तो ये 1/रो है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा NE² τ/m इज इक्वल टू J/E इज इक्वल टू NE म्यू। यहाँ पे म्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। SI यूनिट इज किसका, कंडक्टिविटी का। SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज मोहो पर मीटर। VI characteristics, linear and non-linear। The relation R is equal to V/I is valid for both ohmic and non-ohmic devices। ये फॉर्मूला है R is equal to V/I। तो ये ohmic डिवाइसेस हों चाहे नॉन ohmic डिवाइसेस हों, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप दोनों डिवाइसेस का आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। बट थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। ohmic डिवाइसेस में जो रेजिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट होती है, ओम्स लॉ वहाँ पे ओबे होता है। सो R इज कांस्टेंट फॉर ohmic डिवाइसेस। ohmic डिवाइसेस क्या होते हैं, द डिवाइसेस विच ओबे ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं दोज डिवाइसेस आर कॉल्ड ohmic डिवाइसेस। और इसमें VI ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो आप ग्राफ बनाते हैं वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ओम्स लॉ इज ओबेड एंड दोज डिवाइसेस आर कॉल्ड ohmic डिवाइसेस। और वहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। एंड R इज नॉट कांस्टेंट फॉर नॉन ohmic डिवाइसेस। नॉन ohmic डिवाइसेस कौन से होते हैं, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। उसमें VI ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता और R की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं होती। वो पॉइंट्स पे, अलग अलग पॉइंट्स पे वैल्यू डिफरेंट आएगी। VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर लीनियर, लीनियर की बात कर रहे हैं हम। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। इफ ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर
and Ohm's law is obeyed. तो इस टाइप का ग्राफ आता है VI ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है लीनियर के लिए। Ohm's law obey हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? In this graph, voltage V is taken along x-axis and current I is taken along y-axis. Then slope of the graph, slope is equal to आएगा I upon V, और I upon V क्या आ जाएगा? That is equal to 1 upon R. तो इस ग्राफ की हेल्प से आप स्लोप इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और यदि यही ग्राफ हम हेंस विद द हेल्प ऑफ स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। यदि हमारे पास 1 अपॉन आर की वैल्यू आ जाती है तो उसका रेसिप्रोकल करके हम आर की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली यदि हम ग्राफ को थोड़ा उल्टा कर दें, एक्स एक्सिस पे करंट ले लें और वाई एक्सिस पे वोल्टेज ले लें, तो इट इज मच इजियर। इन दिस ग्राफ करंट आई इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वोल्टेज वी इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। देन स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू वी अपॉन आई एंड इट विल गिव द वैल्यू ऑफ आर। तो इस ग्राफ की हेल्प से हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली। Hence, with the help of slope of VI graph, we can find the value of resistance. Next is VI characteristics, non-linear. अब देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहाँ कहाँ नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, ये ग्राफ है, करंट इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वोल्टेज इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। तो नॉर्मल कंडीशन में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, ये डॉटेड लाइन से शो कर रहा है, बट कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए काफ़ी देर लगा देते हैं और काफ़ी देर से सिस्टम ऑन रहता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है, तो जिससे ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो जो वी आई ग्राफ में स्लाइट वेरिएशन आती है, इट विल नॉट रिमेन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये वी आई ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो दिस इज नॉन लीनियर कंडीशन ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। बिकॉज ओम्स लॉ में आपने स्पेशली पढ़ा था, व्हेन फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड व्हेन फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर स्ट्रेन रिमेन्स कांस्टेंट। और यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो वी आई ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड्स, सेमीकंडक्टर डायोड्स में यदि आप ग्राफ बनाते हैं, तो जो एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, दिस इज द वोल्टेज अप्लाइड, एंड वाई एक्सिस पे है करंट, पॉजिटिव वाई एक्सिस में है मिली एम्पियर एंड नेगेटिव वाई एक्सिस में है माइक्रो एम्पियर। ये आप फर्दर लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आप सेमीकंडक्टर डायोड्स में। तो जब आप वी आई ग्राफ वहाँ पे बनाते हैं इन केस ऑफ डायोड्स, इट इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन, दीज आर द कर्व्स। तो यहाँ भी क्या है, दिस इज द नॉन लीनियर ग्राफ एंड ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड। इस ग्राफ की हेल्प से आप आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट कांस्टेंट, वेरिएबल रेजिस्टेंस आएगी, डिफरेंट वैल्यू ऑफ आर एट डिफरेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ थायरिस्टर, थायरिस्टर के केस में भी जब आप वी आई ग्राफ बनाते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। So these are the three conditions where VI graph is not a straight line, it is non-linear and Ohm's law is not obeyed in these cases, and these devices are called non-ohmic devices. Thank you. Have a nice day.